Okay, so now we are going to see the liquid state in the chapter of gaseous state. And we know that the liquid state is just a continuation of a gaseous state. अगर आप गैस को कंप्रेस करें और कूल डाउन करें, then you can convert the gas to liquid. Right, so we are going to learn three important property of a liquid: vapor pressure, surface tension and viscosity. आपको कौन बताया? Okay, let's talk about the liquid state quickly. First, the intermolecular forces are stronger in liquid state. Liquids are denser than gases, we know that, and liquids have definite volume because liquid molecule has a strong forces, so they are not going to separate from each other. Liquids can flow. They can be poured and can assume the shape of container in which these are stored. So liquid does not have a fixed shape, but they have fixed volume. Liquid has a fixed volume, but उनका fixed shape होता नहीं है. Okay. Now let's talk about the first, vapor pressure. Okay, what is vapor pressure? Try to understand this. Consider that we have a closed container. This is the closed container, and in this container we have filled some liquid. Now liquid has a tendency to evaporate at any temperature. Liquid has a tendency to evaporate at any temperature. अगर आप पानी का पोछा लगा दोगे तो पानी अपने आप इवापोरेट हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ना. हम ऐसा थोड़ी है कि 100 डिग्री गर्म करके पोछा लगाते हैं, नहीं ना. हम तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही पोछा लगाते हैं तो भी पानी उड़ जाता है. दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन. सो इफ यू टेक अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर, लेट्स से हमने ऊपर यहाँ पे एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस रखा है, बैरोमीटर. यहाँ पे एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है बेटा, ध्यान दीजिएगा. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस लिक्विड विल स्टार्ट इवापोरेटिंग and the vapor will start accumulating. Right, this process is called evaporation. What is it called? Evaporation. So we have a liquid and liquid automatically convert to vapor. This take place at any temperature and this is called as evaporation. Now what happens? As soon as the vapor will gather here, the pressure will increase. Right, and at the same time the vapor molecule which will come close to the surface is all of the vapor molecules. The vapor molecule which will come close to the surface will again trap them and convert to liquid, and that is called vapor to liquid is called condensation. Vapor to liquid, what is it called? Condensation. So but two things are taking place together. The liquid is continuously converting to vapor, that is evaporation, and the vapors are accumulating and the vapor will again condense back to liquid, that is called condensation. Now the stage will come when the system will come in equilibrium. Equilibrium means the rate of evaporation and rate of condensation become same. The stage will come where the rate of evaporation and rate of condensation become same. That means एक stage के बाद जितने पार्टिकल वेपर बनेंगे उतने ही वेपर वापस कंडेंस हो जाएंगे. तो द वेपर कंटेंट बिकम फिक्स. वेपर कंटेंट कैसा हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने के बाद जितना नया वेपर बनेगा उतना ही वेपर वापस कंडेंस हो जाएगा. सो वेपर कंटेंट कैसा हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा. ओके, नाउ इन दैट इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वेपर ओवर अ सरफेस ऑफ लिक्विड, वेपर विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ लिक्विड. राइट, सो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये वेपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड vapor pressure of a liquid. What is it called? Vapor pressure of the liquid. So we write here at equilibrium, rate of evaporation and rate of condensation become equal. Right, in this state pressure exerted by vapor over a surface of liquid is called vapor pressure. What is it called? Vapor pressure. Is it to understand? Okay, let's read this. When liquid, yeah, there we go. When liquid and in vapor are in equilibrium,
कौन इक्विलिब्रियम में होगा? लिक्विड और वेपर. व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, देन वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. तो कौन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए बेटा? लिक्विड एंड वेपर शुड बी इन इक्विलिब्रियम. इस स्टेट पे जो भी वेपर का प्रेशर लग रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. मैंने लिक्विड इज हीटेड in an open vessel. See, if the vessel is open and if you heat the liquid, the vapor will form, but the vapor will escape because the container is open. In open container, vapor will escape. तो open container में equilibrium होना नहीं है. If the container is closed, then there are chances of equilibrium. So when liquid is heated in an open vessel, the liquid vaporizes from the surface at the temperature at which. Now it is very important, the definition of boiling point. What is the definition of boiling point? So boiling point is that temperature when the vapor pressure become equal to atmospheric pressure. ऐसा टेम्परेचर जब वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाएगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. हम अभी लिखेंगे डेफिनेशन. ओके फाइन. सो एट द टेम्परेचर वी हैव अ डेफिनेशन हियर. एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड become equal to the external pressure, the vaporization can occur throughout the bulk of the liquid and vapors expand freely into surrounding. The condition of the free vaporization throughout the liquid is called boiling. अभी सोचा था boiling ये होता है. So boiling का मतलब क्या है बेटा? Boiling means the condition of free vaporization throughout the liquid. देखिए दो चीजें, एक है evaporation, एक है boiling. Evaporation take place only from surface. But when the liquid boil, you must have seen, जब liquid boil होता है, so boiling take place from entire bulk. अब जब liquid को boil करोगे ना तो पूरा पानी एकदम ऐसे खौफ हो जाता है, पानी में कांपने लगता है पानी. Right? So evaporation take place from surface only, but the boiling take place from entire bulk. Right? अब हो क्या रहा है? आप जैसे ही liquid को गर्म कर रहे हो, ठीक है, वेपर तो बन रहा है, बट अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वेपर को वापस बिठा देगा, बैठ. बट अब जितना लिक्विड को गर्म करते जाओगे उतना वेपर भी ज्यादा बनता जाएगा, उतना वेपर का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. और जब ये वेपर का प्रेशर बाहर के प्रेशर जितना हो जाएगा, जब वेपर का प्रेशर बाहर के प्रेशर जितना हो जाएगा, तब वो वेपर अब फ्रीली एक्सपांड करना चालू कर देंगे बाहर. एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग. जब वेपर का प्रेशर बाहर जितना हो जाएगा तो वो वेपर क्या करेगी? अब एटमॉस्फेयर में फ्रीली एक्सपांड करेगा. And that state is called as boiling. तो जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर जितना हो जाता है ना, that temperature is called boiling point. Can you understand this thing? Okay, so we will write the definition of boiling point. चलो boiling क्या है पहले तो वो देख लेते हैं बेटा. boiling का मतलब है free vaporization of liquid throughout the bulk. This is called boiling. What is it called? Boiling. What is boiling point? Boiling point is that temperature. Boiling point is a temperature at which vapor pressure become equal to atmospheric pressure. Vapor pressure become equal to atmospheric pressure. Vapor pressure become equal to atmospheric pressure and vapor expand freely. Vapor expand freely in atmosphere. Do you understand this everyone? Yes. Right? So जब वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा उसे? हम बॉइलिंग पॉइंट. राइट? सो इफ यू हैव अ कंटेनर, see if the temperature is less than boiling point, what will take place? Evaporation. What will take place? Evaporation. Evaporation खाली कहां से होता है बेटा? From surface. Evaporation खाली कहां से होता है? From surface. But when the temperature become equal to or greater than boiling point, now what will start taking? Boiling. And boiling is a bulk phenomena. That means in case of boiling, the vapor will form from entire bulk.
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग. अंडरस्टूड? समझ गया ना इवापोरेशन क्या है, बॉइलिंग क्या है, राइट? चलो आगे देखते हैं. और नेक्स्ट डू वी हैव, आगे मतलब पीछे. चलो, so boiling point we have already defined. The temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the external pressure is called as boiling point at that particular pressure. At 1 atmosphere pressure, boiling temperature is called normal boiling point. अगर बेटा बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है ना, बाहर का प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. और अगर बाहर का प्रेशर 1 बार है तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. ये बहुत छोटी छोटी बात है. अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो हम बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहेंगे उसे हम, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. आई विल राइट दिस इन नोट्स आल्सो, लिख देते. चलो यहाँ पे अगर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर तो कौन सा बॉइलिंग पॉइंट आएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, राइट? अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है तो कौन सा बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बेटा, उसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. अंडरस्टूड? तो हम इसमें से कोई भी नोट्स नहीं लिखेंगे, इसमें से कोई भी नोट्स हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा ना ये लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है. सो इट्स इन फॉर्म ऑफ अ नोट्स, राइट? चलिए आगे देखते हैं. व्हाट एल्स डू वी हैव इन दिस? द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बोलो पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना, अब ये बहुत क्रिटिकल चीज है. पानी का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 99.6 डिग्री. पानी का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट 99.6 है. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल मतलब बाहर का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक. तो अगर बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, अगर बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो पानी कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा, 100. और अगर बाहर का प्रेशर 1 बार है तो पानी कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा, 99.6 के ऊपर, राइट? सो आई विल मेक इट हियर कि पानी के लिए ये वैल्यू कितना है बेटा, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. और ये कितना है, 99.6, राइट? सेल्सियस लिख देना वहां पे. तो बेटा ये पॉइंट भी हम नहीं लिखेंगे, नो नीड टू राइट दिस पॉइंट ऑल्सो. अब बेटा क्या होता है पता है, हायर एल्टीट्यूड, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो ना, जैसा कि केदारनाथ जो मैं जाके आया था इस साल, तो वहां पे ना खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. यू नो द रीजन फॉर दिस? हायर एल्टीट्यूड पे खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्यों? ऑक्सीजन नहीं होता है इसलिए, ऑक्सीजन कम होता है इसलिए. हायर एल्टीट्यूड पे खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है. यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? See, I'll tell you the reason behind this. Tell me. So at higher altitude, pressure is more or less? More. वाह बेटा वाह. तुम हिमालय पे जाओगे तो वहाँ प्रेशर बढ़ता है घटता है? प्रेशर कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितना आप हाइट पे जाओगे उतनी हवा पतली होती जाती है. जितनी हवा पतली होती जाएगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है. बेटा अगर बाहर का प्रेशर कम हो गया है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? अगर बाहर का प्रेशर कम हो गया है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. क्योंकि अगर बाहर का प्रेशर, देखो मेरी बात सुनो, समझो. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम एटमॉस्फेरिक. अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.7 ही है खाली, ऐसे 1 एटमॉस्फेयर होता है, बट अब हाइट पे गए और वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर खाली 0.7 ही है, तो आपको पानी को इतना ही गर्म करना है ताकि उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 0.7. जैसे ही 0.7 होगा बॉइलिंग विल स्टार्ट. तो यहाँ पे आपको पानी को उतना गर्म करना पड़ेगा ताकि वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचे, तब पानी बॉईल होता है. हाइट पे जाओगे तो सपोज प्रेशर बाहर का 0.7 ही है, तो आपको पानी को उतना ही गर्म करना है ताकि उसका वेपर प्रेशर कितना हो, 0.7 हो. जैसे ही 0.7 होगा पानी बॉईल हो जाएगा. मतलब आप पानी 100 डिग्री तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, पानी 70-75 पहुंचेगा और बॉईल हो जाएगा. मतलब आपको वो हाई टेम्परेचर मिल ही नहीं पाएगा. और अगर हाई टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है पानी का तो कुकिंग विल बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल टेक मोर टाइम. यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ पे तो आपको पानी 100 डिग्री तक पानी ही रहता है, तो आपको 100 डिग्री वाला पानी मिलेगा यहाँ पे. बट जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते हो पानी 70-75 पे ही बॉईल हो जाता है, तो आपको तो पानी खाली 70-75 डिग्री वाला ही मिलने वाला है. तो वहां पे अगर कुकिंग फास्ट करना है तो क्या करेंगे, वी विल यूज प्रेशर कुकर.
प्रेशर कुकर क्या करता है, जो भी वेपर बनेगा उसको बाहर नहीं जाने देगा, वो वेपर को अंदर का अंदर ही रखेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लिक्विड के ऊपर वेपर का प्रेशर बढ़ेगा, आगे ना, मतलब लिक्विड का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो अब लिक्विड को आपको और गर्म करना पड़ेगा अगर बॉईल करना है तो। इसीलिए आप देखना प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है कंपेयर टू दी ओपन वेसल। अगर आप पानी को गर्म करने रखोगे ना प्रेशर कुकर में और ओपन वेसल में, तो देखना प्रेशर कुकर का जो पानी होता है ना वो कुछ ज्यादा ही गर्म होता है। कभी कुकर में बनी हुई खिचड़ी खाई है? इधर 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 चपके पड़ते हैं, इधर चपके पड़ते हैं जबरदस्त, अगर आपने संभाला नहीं तो। क्योंकि प्रेशर कुकर का टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है और पानी बॉयल नहीं होता है। क्योंकि प्रेशर कुकर में वेपर जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो वेपर क्या करता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ा देता है और आपको पानी को और ज़्यादा गर्म करना पड़ता है अगर पानी को बॉयल करना है तो। Understood? So now we write here at higher altitudes what will happen. So at higher altitudes atmospheric pressure is less. Let me write in form of statement. At higher altitude atmospheric pressure is less. Atmospheric pressure is less. Therefore boiling point of water will decrease. Boiling point of water will decrease. पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। हैंस वाटर बॉयल एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री। वाटर बॉयल एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी तो 100 के पहले ही बॉयल हो जाएगा, तो आपको इतना हाई टेम्परेचर मिलना नहीं है। हैंस ड्यू टू less temperature of water cooking become difficult. Cooking become difficult. Okay, let's see further. In hospital, surgical instruments are sterilized in autoclave in which the boiling point of water is increased by increasing the pressure. आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे बाहर का उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। जितना आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे उतना आपको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। सो हॉस्पिटल में जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के लिए वी यूज द वाटर ओनली, बट दैट वाटर विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100, राइट। एंड बाय हाउ वी आर डूइंग इट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर अबव द वाटर, राइट। तो आपको 100 से भी ज़्यादा गर्म पानी मिलेगा और उससे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट अकर व्हेन लिक्विड इज हीटेड इन क्लोज वेसल। On heating continuously, vapor pressure increases. At first, a clear boundary is visible between liquid and vapor phase because liquid is more dense than vapor. As the temperature keep on increasing, more and more molecule go to vapor phase and density of vapor rises. At the same time, liquid become less dense. It expands because molecule move apart. When density of liquid and vapor become the same, the clear boundary between liquid and vapor disappear. This temperature is called critical temperature. तो यहाँ पे एक पॉइंट आया क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर लिक्विड्स। अब क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए, ये पॉइंट हम नहीं लिखेंगे नोट्स में, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सपोज यू आर हीटिंग द लिक्विड इन क्लोज वेसल। इन दिस केस लेट्स से यू आर कीप ऑन हीटिंग इट। अगर आप इसको गर्म करते जाओगे तो व्हाट विल हैपन, इसको गर्म करते जाओगे देन मोर एंड मोर वेपर विल एक्यूमुलेट, राइट। एंड एज द वेपर इज इंक्रीजिंग हियर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज। तो स्टार्टिंग में लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो लिक्विड नीचे रहेगा, वेपर ऊपर रहेगा, यू कैन सी क्लियर बाउंड्री। और अगर आप और गर्म करते जाओगे तो और वेपर बनते जाएंगे, लिक्विड का डेंसिटी कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब लिक्विड का और वेपर का डेंसिटी सेम हो जाएगा। जब दोनों का डेंसिटी सेम हो जाएगा देन एवरीथिंग विल बी इंटरमिक्स, फिर आपको कोई सेपरेट बाउंड्री दिखना नहीं है। एंड दैट टेम्परेचर एट विच डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वेपर बिकम सेम, उस टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बॉइलिंग खाली क्लोज वेसल में ही होता है, प्रेशर कुकर में कभी पानी बॉइलिंग होता नहीं है। प्रेशर कुकर में आप गर्म करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब पानी का और वेपर का डेंसिटी सेम हो जाएगा, फिर सब कुछ इंटरमिक्स हो जाएगा, 100% वेपर बनना नहीं है। अंडरस्टूड?
ओपन वेसल अगर होगा, ओपन वेसल में गर्म करते जाओगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे वेपर प्रेशर बाहर जितना होगा, लिक्विड बाहर एक्सपांड हो जाएगा एंड बॉइलिंग विल टेक प्लेस। क्लोज वेसल में ऐसा नहीं होगा। क्लोज वेसल में अगर आप गर्म करोगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इनिशियली यू हैव अ सेपरेट बाउंड्री, but on keep on heating the liquid density will decrease, and when the liquid density become equal to vapor density, everything will mix uniformly, and that condition is called critical temperature. Okay, fine, understood? So we'll just write this one: when the density of liquid and vapor become same. Now another property of the liquid is surface tension. This particular quantity is more relatable in physics, you can say. Physics में इसके अच्छे खासे questions हैं, सब कुछ है. Okay, let's see what is surface tension. चलिए, so let's say we have a liquid and it's a surface of liquid. I'm talking about two molecules. एक molecule यहाँ पर है, which is inside the bulk, and another molecule is here, near the surface. Right? We have discussed. We have taken two molecules of liquid. एक molecule जो bulk के अंदर है, दूसरा molecule जो surface के पास है. Now the molecule which is near the inside the bulk, which is equally attracted from all the direction, क्योंकि चारों तरफ water particle होंगे या liquid particle होंगे. So this particle is equally attracted from all the side. As this particle is equally attracted from all the side, the net force on this particle is 0. Right? So particle in the bulk experience no net force. Particle in the bulk experience no net force. Particle in the bulk experience no net force because it is equally attracted from all the side. Now what about particle which is at the surface? Now the particle at the surface is only attracted from downward direction, क्योंकि उसके ऊपर तो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल इतना अट्रैक्शन नहीं लगाता है जितना लिक्विड पार्टिकल लगाते हैं. So when you talk about this particle which is near the surface, this particle experience net downward force. This particle experience net downward force. Do you agree with me? Yes. Net downward force. Now beta, when there is a force, there is energy. When there is a force, there is an energy. So because of this downward force, surface के पास जितने particle होंगे, they all will experience downward force. And because of this downward force, the surface possess energy. So due to this downward force, surface possess energy. Due to this, surface possess energy. Due to this, surface possess energy. Right? Now every system has a tendency to minimize the energy. हर एक सिस्टम को स्टेबल रहना है. हर एक सिस्टम को कैसा रहना है? स्टेबल रहना है. सिस्टम स्टेबल कब होगा? जब उसका एनर्जी कैसा हो? मिनिमम हो. तो लिक्विड भी कोशिश करेगा कि अपने एनर्जी को मिनिमम करा जाए. और इसका एनर्जी मिनिमम कब होगा? इसका एनर्जी मिनिमम तब होगा जब आप सरफेस कैसा कर दो? मिनिमम कर दो. क्योंकि जो भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी कहां पर है? सरफेस पे है. तो अगर लिक्विड को स्टेबल होना है तो लिक्विड हमेशा क्या कोशिश करता है? सरफेस को जितना बने उतना मिनिमम रखा जाए. इसीलिए आप देखना रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल. Because for a given quantity, the sphere assume minimum area. अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी दे दिया है और उसमें से आप अलग अलग शेप बनाओगे ना, तो सबसे कम शेप किसका, सबसे कम सरफेस एरिया किसका बनता है? स्फीयर का. तो इसीलिए लिक्विड के ड्रॉपलेट हमेशा कैसे होते हैं? स्फीयर होते हैं, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम है. सरफेस एरिया मिनिमम मतलब सरफेस एनर्जी मिनिमम. एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम. ये भी हम आगे भी डिस्कशन करेंगे. तो अभी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. द पार्टिकल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स सरफेस possess एनर्जी. हेंस सरफेस assume minimum area. Surface assume minimum area to decrease this energy. Minimum area to decrease this energy. राइट. सो अगर मान लीजिए बेटा कि बल्क में से नीचे से अगर आपको कोई मॉलिक्यूल को ऊपर लाना है खींच के, अगर नीचे से कोई मॉलिक्यूल को आपको ऊपर लाना है खींच के, अगर मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर लाओगे तो थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. तो लिक्विड की कोशिश क्या है? सरफेस एरिया को मिनिमम रखना है. तो लिक्विड नेचुरली किसी पार्टिकल को ऊपर नहीं आने देगा. अगर आपको पार्टिकल को ऊपर लाना है सरफेस पे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड तो क्या करेगा? लिक्विड को अपना एरिया कैसा रखना है? मिनिमम रखना है.
अगर आप किसी पार्टिकल को बल्क में से सरफेस पे लाना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स क्या करेंगे, पार्टिकल को नीचे खींच कर रखेंगे। आपको अगर पार्टिकल को ऊपर की तरफ लाना है तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा या आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। मतलब जैसे ही आप पार्टिकल को खींच के ऊपर लाओगे, सरफेस थोड़ा बढ़ेगा, सरफेस बढ़ेगा तो साथ में एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जो एनर्जी बढ़ी है ना पर यूनिट एरिया, जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया, सरफेस के ऊपर एनर्जी है, जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस पे एनर्जी क्यों है, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल को नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स, और ये फोर्स की वजह से सरफेस के ऊपर क्या है, एनर्जी है। तो सरफेस पे जो भी एनर्जी है पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या कह देंगे बेटा, सरफेस टेंशन, राइट। तो वी डिफाइन द सरफेस टेंशन नाउ, एंड द सरफेस टेंशन डिफाइन एज surface tension, it is defined as energy possessed by surface, energy possessed by surface per unit area, राइट। तो बेटा हम सिंपली याद रखेंगे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसका सिंबल है सिग्मा। सरफेस टेंशन का सिंबल क्या है बेटा, सिग्मा है, या फिर टी भी लेते हैं या एस भी लेते हैं, अलग अलग सिंबल अलग अलग बुक्स में है। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया। चलो बेटा यहां से इसका यूनिट क्या बनेगा, तो एनर्जी इज जूल, एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट बन गया बेटा यहाँ पे, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो पहला डेफिनेशन आया आपको समझ में, पहला डेफिनेशन आया सबको समझ में सरफेस टेंशन का। अब सरफेस टेंशन का एक और डेफिनेशन भी दिया है, वो भी देख लेते हैं कि दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, वो भी मैं आपको फिगर से क्लियर करवा दूंगा। लेट्स से ये लिक्विड का सरफेस है बेटा, दिस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड, राइट। ये पूरा लिक्विड है यहाँ पे, ओके। सो अगर अब लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक हाइपोथेटिकल लाइन अज्यूम करो, लिक्विड के सरफेस के ऊपर अगर आप एक हाइपोथेटिकल लाइन एज्यूम कर रहे हो, हाइपोथेटिकल लाइन, राइट। सो इस लाइन के एक तरफ वाले पार्टिकल दूसरे तरफ वाले पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होंगे, हाइपोथेटिकल लाइन के एक तरफ वाले पार्टिकल दूसरे तरफ वाले पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होंगे, उस फोर्स को भी कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के दो डेफिनेशन है, एक एनर्जी बाय एरिया और दूसरा फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक एनर्जी बाय एरिया और दूसरा कौन सा यूनिट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आई विल गिव यू वन गुड एग्जांपल फॉर दिस, जो फिजिक्स में से मैं निकालूंगा अभी, ओके। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ between the particles of both side of hypothetical line, both side of hypothetical line on surface। ठीक है, तो बेटा एक और फॉर्मूला हो गया सरफेस टेंशन का, क्या हो गया ये, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ F बाई L। तो यहां से बेटा यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर, सॉरी फोर्स इज न्यूटन पर मीटर। तो बेटा एक और यूनिट बना यहां से, क्या यूनिट बना यहां पे, न्यूटन पर मीटर, फोर्स बाय लेंथ। तो एक फॉर्मूला कौन सा है बेटा, एक फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, और दूसरा क्या है कि अगर मान लो ये लिक्विड का सरफेस है और यहाँ पर बीच में एक लाइन खींची है, तो इस लाइन के एक तरफ वाले पार्टिकल दूसरे तरफ वाले पार्टिकल के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट लेंथ, उस अट्रैक्शन फोर्स को भी हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, यू कैन टेक ए सिंपल एग्जांपल। अगर मान लीजिए कि सपोज आपने ना साबुन का बबल फुलाया है, हम जब छोटे थे ना तो नहाते वक्त हम ऐसे ऐसे करके बबल, अब बबल फूल तो जाएगा, बट जैसे ही आप हवा ब्लो करना बंद करोगे क्या होगा, नहीं, बबल वापस छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज लिक्विड सरफेस वांट टू एज्यूम मिनिमम एरिया, इसीलिए जैसे ही आप एयर ब्लो करना बंद करोगे वापस एरिया कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके, अगर आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जैसा भी आप कर सकते हो बेटा, सुनो। अगर मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा यू फ्रेम बनाया, यू शेप का फ्रेम बनाया,
और उसके ऊपर हमने एकदम हल्का अगर हमने इसके ऊपर एक रॉड लगा दिया, एकदम हल्का, राइट, विच इज एबल टू स्लाइड। अब अगर इस फ्रेम को हम साबुन वाले पानी में डाल के बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे साबुन का फिल्म बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना निसर्ग, बनेगा। चाय पिया? चलो, तो फिर अब जैसे ही आप इस फ्रेम को बाहर निकाल के इस रॉड को छोड़ोगे ना, क्या होगा? इस रॉड को छोड़ते ही ये फ्रेम अपने आप वापस बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस को कैसा होना है? मिनिमम होना है। तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो यहां पे हाइपोथेटिकल फोर्स लग रहा होगा। जैसे ही आप छोड़ोगे ये हाइपोथेटिकल फोर्स क्या करेगा? सरफेस को मिनिमम कर देगा, एंड दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज आल्सो कॉल्ड सरफेस टेंशन। So that's a practical thing about surface tension, right? ये फ्रेम के ऊपर, ये रॉड के ऊपर लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, इसलिए जैसे ही आप इस रॉड को छोड़ोगे लिक्विड का एरिया कैसा हो जाएगा? मिनिमम, अपने आप बंद हो जाएगा। Okay, so that is practical things about the surface tension. Important theory can be asked in 2 marks. You have to write the definitions as well as the units. Okay. अब देखो, चलो इसको पढ़ो बेटा, पढ़ो चलो फटाफट, टेक योर टाइम, रीड इट। हमने जो समझा है वही है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम द स्लाइड। ये पूरा स्लाइड आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने पूरे स्लाइड में सब कुछ बता दिया है आपको। यहाँ पे हमने सब कुछ नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग फ्रॉम दिस स्लाइड। ये तो मैंने अभी बनाया ना पीपीटी, इसलिए ये स्लाइड के अंदर है, बाकी मैं सब निकाल देता हूँ। रीड इट वन मोर टाइम। So this one, liquid tend to minimize their surface area. Here, molecule on the surface will experience downward force, and hence they have more energy. Agreeing? Yes. Therefore, the liquid tend to have minimum number of molecule at their surface. क्योंकि सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल उतना सरफेस बड़ा, उतनी एनर्जी ज्यादा, उतना स्टेबिलिटी कम। ओके, नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस, सी इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड is increased by pulling a molecule from a bulk, attractive forces have to be overcome. This will require expenditure of energy. अगर किसी पार्टिकल को बल्क में से खींच के सरफेस पे लाना है, then you have to give work, you have to expend your energy. क्योंकि सरफेस किसी को भी ऊपर आने नहीं देगा, तो आपको मेहनत करके उसको ऊपर लाना पड़ेगा। The energy required to increase the surface area of liquid by 1 unit. Energy required to increase the surface area of the liquid by 1 unit is called what? Surface energy or surface tension. हमने क्या लिखा है बेटा? Energy possessed by surface per unit area. हम इसको टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, that is energy required to increase surface area by 1 unit. Increase surface area by 1 unit is also called surface tension. एक ही बात है बेटा, energy per unit area, energy per unit area is called surface tension. चलो यूनिट हमने कर लिया है। दूसरा डेफिनेशन आया, देखो फोर्स वाला। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो हमने क्या करा था? लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया कि नहीं? राइट, और उस लाइन पे क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स, एंड दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ वाज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। रीड इट वन मोर टाइम। इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कौन सा यूनिट लेंथ? यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन जो आपने कहां ड्रॉ किया है? सरफेस के ऊपर। सो इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के सरफेस पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है यूनिट लेंथ का, और उस यूनिट लेंथ के लाइन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसे क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन। दैट्स अनदर यूनिट। यहां से उसका यहाँ पे यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर। अब ये सारे practical application of surface tension. Let's check the practicality. The lowest energy state of the liquid will be when the surface area is minimum. Lowest energy state क्या होगा? जब surface area कैसा हो? Minimum, क्योंकि सारा energy surface पे ही तो है। Now for the given quantity which has the minimum surface area, spherical shape. The spherical shape satisfies this condition. That is why mercury drops are spherical in shape. तो किसी भी लिक्विड के ड्रॉपलेट कैसे होते हैं बेटा? स्फेरिकल होते हैं। लिक्विड के ड्रॉपलेट स्फेरिकल इसीलिए होते हैं बिकॉज स्फीयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया, ड्यू टू दैट दे हैव मिनिमम सरफेस एनर्जी।
एंड हेंस दे हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसीलिए कोई भी सरफेस हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल ही होता है इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड, राइट। ग्रेविटी की वजह से देखो, जब बारिश में से ड्रॉप गिरता है ना तो ऐसा होता है, बट ग्रेविटी की वजह से फिर ऐसा हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। This is the reason that sharp glass edges. Now we have another point called as fire polishing of glass. Fire polishing of glass. अब ग्लास जब बनाया जाता है ना तो ग्लास के एजेस बहुत शार्प होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, चाकू से भी शार्प होते हैं ग्लास के एजेस। तो ग्लास के एजेस को अगर स्मूथ करना है तो क्या करेंगे, घिसने थोड़ी बैठते हैं, क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। सी, ग्लास इज जस्ट a liquid which is super cooled. Glass is not considered solid. Glass is actually a liquid which is super cooled. Glass is super cooled liquid. So क्या करा जाता है, ग्लास को थोड़ा सा गर्म करा जाता है। जैसे ही गर्म करेंगे वो हल्का सा मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद जब वो वापस सॉलिडिफाई होगा तो ग्लास भी कोशिश करेगा कि सरफेस एनर्जी कैसे करी जाए, मिनिमम। इसीलिए जो शार्प एजेस होंगे ना वो सारे कैसे हो जाएंगे, स्फेरिकल हो जाएंगे अपने आप। तो शार्प एजेस है वो अपने आप कैसे हो जाएंगे, सॉलिडिफाई होते वक्त स्फेरिकल हो जाएंगे, बिकॉज स्फेरिकल विल हैव अ मिनिमम सरफेस एनर्जी। सो दैट इज कॉल्ड फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास, जहां पे ग्लास के सरफेस को स्मूथ किया जाता है बाय हीटिंग, एंड व्हेन द ग्लास विल सॉलिडिफाई द एजेस विल अज्यूम स्फेरिकल शेप टू मिनिमाइज द सरफेस एनर्जी। अंडरस्टूड? तो ग्लास को घिसा नहीं जाता है, ग्लास को खाली गर्म करके ठंडा करा जाता है, तो अपने आप उसके एजेस एकदम स्मूथ हो जाते हैं। ओके, सी, the sharp glass edges are heated for making them smooth. On heating, what will happen? The glass will melt and the surface of the liquid tend to take the rounded shape as the at the edges, which makes the edges smooth. The edges को गर्म करेंगे, glass will melt. जैसे ही glass solidify होगा, edges अपने आप spherical बन जाएंगे and it becomes smooth. Okay, now one more thing. Liquid tend to rise in a capillary. See what happen? अगर आप एक पानी का जग लोगे और उसमें अगर आप एकदम पतला पाइप रखोगे ना, एकदम पतला पाइप रखो, एकदम पतला, यू विल फाइंड दैट इस पाइप के अंदर लिक्विड का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है। इस पाइप के अंदर लिक्विड का लेवल थोड़ा ऊपर चढ़ता है, एंड दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। अगर ये मर्क्यूरी होगा ना, मर्क्यूरी, अगर मर्क्यूरी में ग्लास का पाइप डालोगे ना, मर्क्यूरी में ग्लास का पाइप, सपोज ये मर्क्यूरी लेवल है, इसमें अगर ग्लास का पाइप डालोगे ना तो पाइप के अंदर मर्क्यूरी लेवल नीचा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कैपिलरी फॉल, एंड यू विल लर्न दिस थिंग्स इन फिजिक्स। इसका फॉर्मूला भी बनाने, डिराइव करने हैं फॉर्मूला, राइट। सो लिक्विड टेंड टू राइज, लिक्विड टेंड टू राइज इन अ कैपिलरी, राइट। And the reason behind this is also surface tension. We will learn about this. तो अभी खाली इतना याद रखेंगे, liquid tend to rise or fall in the capillary. Reason क्या है उसका? Surface tension. Liquid wet the things because they spread across the surface as a film. आपने कभी देखा है पानी लोटस को कभी गीला नहीं करता है? Have you seen that? Yes. पानी को अगर आप कमल के ऊपर डालोगे तो कमल के ऊपर वो ड्रॉपलेट बना लेता है, गीला नहीं होता कमल। पानी को अगर आप आपके रेनकोट पे मटेरियल पे डालोगे तो भी वो गीला नहीं होता है। What is the reason for this? The reason lies in surface tension. There are certain liquids which wet certain surface. अब मर्क्यूरी को हाथ पे लो, मर्क्यूरी पे लिक्विड आप हाथ पे लो, मर्क्यूरी आपके हाथ तो बिल्कुल वेट नहीं करता है, पानी डालोगे तो वेट हो जाएगा हाथ। What is the reason? The reason is surface tension. So there are certain liquids which wet certain surface and certain liquid which will not wet the same surface. तो ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो अभी याद रखेंगे, लिक्विड वेट द थिंग्स बिकॉज दे स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस एज अ फिल्म। मॉइस्ट सॉइल ग्रेन्स आर पुल्ड टुगेदर बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर आप रेती अगर पानी के अंदर है ना तो सारे ग्रेन ऐसे अलग अलग होते हैं पानी में, बट जैसे आप वो रेती को बाहर निकालोगे ना सारे ग्रेन एकदम चिपक जाते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज ऑल्सो सरफेस टेंशन, क्योंकि लिक्विड कोशिश करता है कि पार्टिकल को पास में ला दिया जाए और सरफेस टेंशन कम कर दिया जाए। ओके, बहुत सारी चीजें लिखी है यहाँ पे। ऑन द फ्लैट सरफेस ड्रॉपलेट्स आर स्लाइटली फ्लैटन बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बट इन द ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट ड्रॉप्स आर परफेक्टली स्फेरिकल। सो इफ यू आर गोइंग ग्रेविटी फ्री एटमॉस्फेयर द ड्रॉप्स आर परफेक्टली स्फेरिकल, बट ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे ड्रॉप कैसे हो जाते हैं, थोड़े फ्लैट हो जाते हैं ऐसे।
बट अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाओगे तो ड्रॉपलेट्स आर परफेक्टली स्फेरिकल. द रीजन इज सरफेस टेंशन. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन. सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करेगा बेटा? अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर. क्योंकि जितने फोर्सेस ज्यादा होंगे उतना सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा, जितने फोर्सेस कम उतना सरफेस टेंशन कम. ओके, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर रेज्ड. व्हाई सो? बिकॉज अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो बेटा तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी. बढ़ेगी कि नहीं? कौन सी एनर्जी? काइनेटिक. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा ऑब्वियसली. तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट विल डिक्रीज. अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया तो सरफेस टेंशन विल आल्सो डिक्रीज. सो रिमेंबर, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. Surface tension is inversely proportional to temperature. Understood? Yes. So it is all about the second property of a liquid which we call surface tension. This slide is one of the most important one. इसके ऊपर हमने सब कुछ लिखा है बहुत अच्छे से. Okay. Now we have another property of a liquid which is called viscosity. But before that, we'll take a break for 5 minutes, and then we will start the last property of a liquid called viscosity. So now your break is over and we are going to see the last property of the liquid, and the last property is viscosity. Right? Viscosity बहुत सिंपल सा टर्म है. अगर आप बेटा लिक्विड को फ्लो करते हो सरफेस के ऊपर तो क्या होगा? लिक्विड विल फ्लो, लिक्विड विल ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस एंड देन इट विल स्टॉप. और जहां जहां से वो लिक्विड पास होगा वहां वहां पे वो सरफेस को वेट करते 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 आगे जाएगा. आगे ना? सो हम ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विड का जो लेयर सरफेस के कांटेक्ट में है वो उधर ही रह जाएगा और ऊपर वाले लेयर आगे जाएंगे. राइट? फिर वापस जो लेयर सरफेस पे आए वो वही रह जाएगा, ऊपर वाले लेयर और आगे जाएंगे. इसका मतलब लिक्विड के लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती है. क्या होता है? लिक्विड के लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती है. राइट? नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी क्या होता है? 0. और जितना जितना आप ऊपर जाओगे उतना उतना वेलोसिटी बढ़ता जाता है. जितना आप ऊपर जाओगे सरफेस पे उतना क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ते जाएगा. तो लेट्स सी दिस. विस्कोसिटी इज अ मेजर. इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो. विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो. क्यों होगा भाई फ्लो को रेजिस्टेंस? सो रेजिस्टेंस को फ्लो होगा ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन. Due to internal friction between the layers of fluid. तो बेटा इतना आप लिखोगे ना, चेक करने वाला खुश हो जाएगा. विस्कोसिटी is the measure of resistance to flow. फ्लो को रेजिस्टेंस लगेगा, फ्लो रुकता जाएगा धीरे धीरे. Why this will happen? This will happen because of internal friction between the layers of liquid. So liquid के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, because of that flow will slow down, and that property is called viscosity. Okay. Strong intermolecular forces between molecules hold them together and resist the movement of layer past one another. लिक्विड के बीच में attraction force बहुत strong होता है और ये force लिक्विड को slide होने से रोकता है. When a liquid flow over a fixed surface, बेटा लिक्विड जब किसी surface से flow होगा तो the layer of molecule in immediate contact of surface is stationary. जो लेयर सरफेस के कांटेक्ट में होगा वो वहीं रुक जाएगा, आगे वाले लेयर ऊपर वाले लेयर आगे जाएंगे. राइट? वापस जो लेयर कांटेक्ट में आएगा वहीं रुक जाएगा, ऊपर वाले लेयर और आगे जाएंगे, और ये होता रहेगा. राइट? द वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर इंक्रीजेस एज अ डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर इंक्रीजेस. दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच देयर इज अ रेगुलर ग्रेजुएशन ऑफ वेलोसिटी. इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? रेगुलर gradation of velocity. There is a regular gradation of velocity in passing from one layer to another is called as laminar flow. तो laminar flow का मतलब है flow in form of layers, और वो layer के बीच में proper velocity का gradation होना चाहिए. So consider these are some layers of liquid. Right? Let's say this layer has a velocity v. तो ऊपर वाले का लेयर का वेलोसिटी डेल्टा वी जितना ज्यादा होगा और नीचे वाले का वेलोसिटी डेल्टा वी जितना कम होगा. तो इन सबके बीच में वेलोसिटी का कितना ग्रेडेशन है बेटा? डेल्टा वी. यहां भी कितना ग्रेडेशन है? डेल्टा वी. राइट? सो दिस काइंड ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड इन फॉर्म ऑफ लेयर्स
जहां पे लेयर के बीच में वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, ग्रेडेशन। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। लेट्स से दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, दो लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, डेल्टा एक्स है। सो वी नो दैट, वी डोंट नो दैट बट नाउ वी विल नो दैट रेसिस्टिव फोर्स डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर। रेसिस्टिव फोर्स between the layers, resistive force between the layers, this resistive force depends on certain factors. पहला फैक्टर जो है, that force is directly proportional to area of contact, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। डेल्टा वी मतलब दो लेयर के बीच का वेलोसिटी का डिफरेंस, डेल्टा एक्स मतलब उन दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस। सो जो वेलोसिटी का डिफरेंस है पर यूनिट डिस्टेंस, इन दोनों लेयर के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, डेल्टा वी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स। तो ये जो डिफरेंस बन रहा है डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहेंगे इसे हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। सो योर resistive force between the layer depends on these two factors. Now combining both of these, you are going to get F is proportional to A into delta V by delta X. Now removing the proportionality sign, अगर आप साइन निकाल दोगे यहां से, then you will get F is equal to eta into A into delta V by delta X with a negative sign. What is eta? Eta is called coefficient of viscosity. Eta क्या होता है बेटा, eta होता है coefficient of viscosity, राइट। तो अलग अलग मटेरियल का coefficient of viscosity अलग अलग होता है। जिसका coefficient of viscosity ज्यादा है, से वी हैव टू मटेरियल N1 N2, अगर पहले मटेरियल का coefficient of viscosity ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड मोर विस्कस फ्लूइड। जैसे कि मान लो ये हनी है, हनी इतना इजीली फ्लो होता नहीं है, और ये क्या है, सपोज वाटर है, वाटर फ्लो इजीली। सो वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, हनी का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, चलो यूनिट क्या बनेगा इसका, सो यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चलो आप यहां से चाहो तो यूनिट बना सकते हो, ये हो जाएगा आपका न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड, और ये वापस मीटर। समझे क्या होगा, सेल डिराइव इट। फोर्स इज न्यूटन, ईटा आपको फाइंड करना है, एरिया इज मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड एंड एक्स इज डिस्टेंस, दैट इज मीटर, ये कैंसिल हो गया। सो ईटा का यूनिट क्या हो गया बेटा, ईटा का यूनिट हो गया न्यूटन, सेकंड ऊपर आ जाएगा, इंटू सेकंड, मीटर नीचे जाएगा, मीटर -2। सो यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन इंटू सेकंड मीटर -2, न्यूटन इंटू सेकंड मीटर -2, यू कैन सी इट हियर, न्यूटन इंटू सेकंड मीटर -2। ओके चलो, अब आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, प्रेशर, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। तो एक और यूनिट हो गया बेटा इसका पास्कल इंटू सेकंड, एक और यूनिट क्या हो गया इसका, पा इंटू स, पास मतलब पास्कल इंटू सेकंड। सीजीएस यूनिट में इसका सिस्टम है, इसका यूनिट है पॉइस, सीजीएस में इसका यूनिट है पॉइस, and 1 poise is, listen to me, 1 poise is 10 power -1 Pascal into second, 1 poise is 10 power -1 Pascal into second। याद रखना बेटा, आप फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से डिराइव कर सकते हो चाहो तो, राइट। 1 poise is 10 power -1 Pascal into second। okay, now let's see the last one। greater the viscosity, more slowly the liquid will flow, you can see here, जिसका विस्कोसिटी ज्यादा है वो स्लोली फ्लो होगा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज एज द टेम्परेचर रेजेस, ये भी सिंपल सी बात है, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हाई सो, बिकॉज इफ यू रेज द टेम्परेचर forces become weak, if the forces become weak then liquid flows easily, viscosity is decreased। आगे ना, अगर आप लिक्विड को गर्म करोगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल का एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा तो वो बहुत इजीली फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। इजीली फ्लो हो रहा है इसका मतलब विस्कोसिटी विल डिक्रीज।
राइट. सो विस्कोसिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बेटा सरफेस टेंशन भी क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. एंड विस्कोसिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. राइट. सो अगर विस्कोसिटी आता है एग्जाम में तो आपको डिफाइन करना है, आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखना है और वो यूनिट्स लिखना है. दैट्स इनफ. So that's the end of the theory part of the chapter, gaseous state. Next class we are going to do all the examples. Before the example we will write the formulas and then we will do all the examples and exercise questions, but that's the topic of next class. Thank you.